गामा कार्बन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए कंपाउंड हमारे पास है CH3, CH2, CH2Br. So the carbon to which halogen atom is directly attached is alpha, the nearby carbon is beta, and the next carbon is gamma, or next will be delta, like this. So the carbon which is directly attached to the halogen atom is referred as alpha carbon, nearby carbon is called beta, and the next carbon is called gamma. So when such alkyl halide is treated with alcoholic KOH, then in such case dehydrohalogenation takes place. Dehydro, D means removal, hydro means hydrogen, and halogen means कोई भी halogen atom. So removal of hydrogen and halogen will take place from this alkyl halide. And there is a rule called Setzeff rule. According to Setzeff rule, the beta elimination will take place. Means one of the halogen will go and the hydrogen atom will be eliminated from the beta carbon atom. जैसे आप देख सकते हैं here there are two beta carbon atoms. So one of the H of this beta carbon and this halogen will be eliminated and you will get this product CH3, CH is left, here CH2 is left, and to fulfill the valency of carbon atoms, double bond will appear in between these two carbon atoms and you will get an alkene. I take one more example here. It may possible there are two beta carbon atoms are present in the compound. Like this is carbon alpha. जिस कार्बन से हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है दैट इज अल्फा कार्बन एटम, और जो उसका नियर बाय कार्बन एटम है दैट इज बीटा. सिमिलरली दिस कार्बन इज आल्सो अ बीटा कार्बन एटम and this is the gamma carbon atom. So when this compound is treated with alcoholic KOH, in short it can also be written as, so there are now two beta carbon atoms. Now we have to select from which beta carbon atom H will be eliminated. Br तो यही जाएगा, और कौन सा बीटा कार्बन से H जाएगा दैट इज डिसाइडेड बाय द सेटजेफ रूल, जो दूसरे मायने में ये कहता है कि उस बीटा कार्बन से H जाएगा जिस पर H का नंबर कम हो. आप देखिए here this beta carbon has 3 hydrogen atoms and here this beta carbon has 2 hydrogen atom. तो जिस बीटा कार्बन पर H का नंबर कम हो उसी बीटा कार्बन से H जाएगा. सो CH3, यहाँ CH रह गया, यहाँ CH रह गया, और ये CH3 आ गया, और टू फुलफिल द वैलेंसी ये Br चला गया, ये H चला गया, डबल बॉन्ड विल अपीयर. ऐसा नहीं है कि ये बीटा कार्बन जिस पर H का नंबर ज्यादा है ये यहाँ से H नहीं जा सकता, जा सकता है, बट दैट प्रोडक्ट विल बी द माइनर. मीन्स अगर ये H यहाँ से गया बीटा कार्बन से और ये Br गया, then you will get this product CH3, CH2, here CH is left, here CH2 will be left, and to fulfill the valency you will get this product. So here this product is a major product, approximately 81% will it form, and this is the minor product, approximately 19% it will form. तो सेटजेफ रूल ये कहता है सही तरीके से कि अगर कोई बीटा कार्बन एटम है, अगर दो बीटा कार्बन एटम्स हैं किसी कंपाउंड के अंदर, तो उस बीटा कार्बन से H जाएगा जिसके साथ ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं.
देखिए इस बीटा कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इस बीटा कार्बन से एक भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। या ऐसा बोल दें उस बीटा कार्बन से H जाएगा जिस पर H का नंबर कम हो, या ऐसा बोल दें उस बीटा कार्बन से जाएगा जिस पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिए आपके लिए। दिस इज द कंपाउंड एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, कैसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, इट मींस अल्कोहलिक KOH। तो देखिए इन दिस कंपाउंड दिस इज अल्फा कार्बन, नियर बाई इज बीटा, ये भी बीटा हुआ, दिस इज गामा और दिस इज ऑल्सो गामा एंड दिस इज ऑल्सो गामा। गामा से क्या मतलब नहीं है, यहाँ पे बीटा कार्बन देखना है। तो देखिए ज्यादा अल्काइल ग्रुप किस बीटा कार्बन पर है, ज्यादा अल्काइल ग्रुप इस बीटा कार्बन पर है ना। यहाँ पे इस बीटा कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप है और इस बीटा कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप है, 1 and this is 2. So removal of H will take place more alkylated carbon atom. तो ये बीटा, और या उल्टे तरीके से समझ लो आप कि उस कार्बन से H जाएगा जिस पर H का नंबर ऑलरेडी कम है। So you will get this product CH3 CH3, यहाँ से H चला गया तो क्या बचा, C बचा, यहाँ से Br चला गया, यहाँ से Br चला गया ये वाला, तो यहाँ CH is left. So to fulfill the valency we get double bond over here. This is our major product. ऐसा नहीं है इस बीटा कार्बन से H नहीं आ सकता, जा सकता है, और अगर यहाँ से जाएगा तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। ये CH ऐसे ही रहेगा, ये CH3 SH आ गया, ये CH यहाँ से Br चला गया, और जब यहाँ से H चला जाएगा so it is left only CH. So this is our minor product. This is taking place according to Setzeff rule. एक्चुअल में तो नाम उनका अलेक्जेंडर ज़ेटसेफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ इन योर NCERT, बट दे कैन, इट कैन आल्सो बी पेनिशिएट एज सेटजेफ। सर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होगा तो? अभी बात करता हूँ, पहले ये मैं अपनी बात पूरी कर लूँ बेटे। अलेक्जेंडर ज़ेटसेफ ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज सेटजेफ, who formulated a rule which can be summarized as: in dehydrohalogenation reactions, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms. यानी कि वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कार्बन का, जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड है उससे ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, किसी तरीके से भी आप समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सेटजेफ रूल, और इन ओरिजिनलिटी इट इज अलेक्जेंडर ज़ेटसेफ रूल। कौन सा कंपाउंड पूछ रहे थे बताइए आप? यस, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। isopropyl bromide is a symmetrical alkene. So here only one product is possible. There is no need of Setzeff rule. देखिए it is an symmetrical alkene, and if you carried out reaction with alcoholic KOH, this is beta carbon, this is beta carbon, तो कहीं से भी आप H को रिमूव कर लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। So here Setzeff rule is not applicable in case of symmetrical मतलब haloalkenes में. So this is the only single product that will be the major one. HBr will remove. Elimination versus substitution, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए any nucleophile can act as
a nucleophile as well as a base. If nucleophile act as a base are proton acceptors. So this nucleophile, as in the first figure, will remove H from the alkyl halide and results in the formation of alkene. And if this nucleophile act as a this nucleophile act as a nucleophile only, then it can attack to this carbon atom to which halogen is attached, and it results in the formation of alcohol. I take an example of this reaction. If we carried out the reaction of N-propyl bromide with aqueous KOH, then in such case substitution will take place. OH nucleophile will substitute the halide ion and you will get alcohol. And if you carried out the same reaction, means the same with the same reactant, and now you have taken alcoholic KOH. So in this case, dehydrohalogenation will take place. This is alpha, this is beta, this is gamma. So beta carbon से H चला जाएगा and you will get this product CH, double bond CH2 and HBr will be eliminated. तो ऐसा क्या हो गया alcoholic QH के केस में, that it leads to dehydrohalogenation, right? So यही बात हम अभी कंपेयर कर रहे थे. So if we are treating alkyl halide with aqueous KOH, then in the solution excess amount of OH negative nucleophiles are available, which easily substitute the halide ion, resulting in the formation of alcohol. And this reaction, because it is a primary alkyl halide, so this reaction is favored through SN2 mechanism. And in case of alcoholic KOH, which can provide proton, as you all know, in protonic medium, SN1 reaction is favored. बताया था मैंने आपको. तो alcohols क्या होते हैं? Slightly acidic होते हैं. So they can also provide proton in the solution, and in such case SN1 mechanism will take place. Reaction will proceed through SN1 reaction. And how the mechanism will proceed, that I am telling you. See, when SN1 is proceeded, then in first step, this alkyl halide forms carbocation, CH2 positive plus Br negative. In first step, what is formed? Carbocation. ये तो होता है, and it is a slow step. And in second step, the alcoholic group like C2H5OH और इसका जो C2H5O नेगेटिव, ये अल्कोक्साइड आयन कहलाता है. इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ये न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम कर सकता है. तो ये अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये अल्कोक्साइड आयन जो प्रेजेंट है ड्यू टू अल्कोहल,
it acts as a stronger base rather than a nucleophile. न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस Br नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा. लेकिन यहाँ पर जो ये अल्कोक्साइड आयन है, it will not act as a nucleophile, it act as a strong base and base are proton acceptor. According to Bronsted-Lowry concept, acids are proton donor while base are proton acceptor. So this alkoxide ion has tendency to accept a proton and it favors the elimination of beta carbon atom. तो बीटा कार्बन पर जो ये H है, दो H है, यहाँ से एक H इस C2H5O नेगेटिव के साथ चला जाएगा, results in the formation of alcohol and the main product in such case will be an alkene. तो अगर आप अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन इज फेवर्ड थ्रू SN1 and the alkoxide ion present in the reaction mixture will act as a strong base, not as a nucleophile. In such case, elimination is preferred. Elimination तो H तो जा रहा है over substitution. बजाय कि ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करे Br नेगेटिव को यहाँ पर, वो ना करके क्या कर रहा है, ये एलिमिनेशन को प्रेफर कर रहा है. तो आप बोल सकते हैं in first reaction in which alkyl halide is treated with aqueous KOH, substitution is taking place because in the reaction mixture excess amount of nucleophile OH negative is available and these OH negative ions can easily substitute the halide ion to form alcohol, while in case of alcoholic KOH, in case of protonic medium, the reaction is proceed through SN1 in which the alkoxide ion act as a strong base rather than a nucleophile and it results in the elimination than the substitution. So in SN1 mechanism, elimination is preferred over substitution. So that's why if we use alcoholic QH, we get alkene as a major product, as a main product. And if we use aqueous KOH, then we get alcohol as a main product. Elimination and substitution depends on the size of nucleophile. अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज काफी बड़ा है, जैसे आप देख सकते हैं ये टर्ड ब्यूटॉक्साइड है, ये टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल का जब H पॉजिटिव हटा दिया तो ये टर्ड ब्यूटॉक्साइड बन गया और ये देखिए काफी हैवी ग्रुप है ये, तो ये हैवी ग्रुप आसानी से मूव नहीं कर पाएगा. तो बजाय कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने की के बजाय इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर बेस और ये एल्काइल ग्रुप में से H को लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा. बजाय कि ये यहाँ पर देखिए ये एल्कोक्साइड आयन है, ये आपका इथॉक्साइड आयन है, ये लाइटर एनायन है, तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा, खुद लग जाएगा. लेकिन अगर बल्कि हैवी एल्कोक्साइड आयन है तो वो एलिमिनेशन को प्रेफर करेगा देन द सब्स्टिट्यूशन. तो इस पूरे पैराग्राफ में यही बात समझाई गई है. अ केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन. It is a race that is won by the fastest runner. A collection of molecules tend to do so by and large. What is easier for them? जैसे heavier group है तो वो किसको प्रेफर करेगा, किसको प्रेफर करेगा, एलिमिनेशन को. लाइटर ग्रुप है तो वो कैसा काम करेगा, सब्स्टिट्यूशन को. An alkyl halide with hydrogen atoms when reacted with a base or a nucleophile has two competitive routes. जो न्यूक्लियोफाइल है दो competitive routes रखेंगे, substitution SN1 and SN2 and elimination. Which route will be taken up depends on the nature of alkyl halide
strength and size of base or nucleophile and the reaction conditions. Thus, a bulkier nucleophile will prefer to act as a base and abstracts मतलब निकाल लेगा a proton rather than approach to a tetravalent carbon atom due to steric reason. हैवी ना बल्कि है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो कहेगा प्रोटॉन दे दो भाई मुझे, मैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करूंगा. And vice versa. Similarly, a primary alkyl halide will prefer SN2 reaction. A secondary alkyl halide SN2 or elimination depending upon the strength of base or nucleophile, and a tertiary alkyl halide SN1 or elimination depending upon the stability of carbocation or more substituted alkene. ये हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, कि जो अल्कोक्साइड आयन है उसका साइज क्या है, नेचर क्या है. अगर वो काफ़ी हैवी है तो वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा एलिमिनेशन को. और अगर वो लाइटर है तो कहेगा ठीक है भाई मैं कार्बन पर आसानी से अप्रोच कर पाऊंगा और सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर सकता हूँ. फर्स्ट इज 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. So this is our cyclohexane और इस पे 1 पर ही ब्रोमो है और 1 पर ही मिथाइल है. दिस इज 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. तो इसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड. ये देखिए ये अल्कोहल की रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे यू विल गेट सोडियम इथॉक्साइड. इट एक्ट एज एन अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड. जो हमने अल्कोहलिक KOH लिया था यहाँ पर हमने अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया. दोनों का फंक्शन एक ही है. बोथ विल रिजल्ट्स इन द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. तो देखिए जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली अटैच है ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा है, दिस इज ऑल्सो बीटा, और ये भी कार्बन कैसा है, ये बीटा कार्बन ही है. तो उस बीटा कार्बन से H जाएगा जिस पर H का नंबर कम है. तो यहाँ पर क्या है CH2 CH2 CH3. तो दैट बीटा कार्बन विल अंडरगो एलिमिनेशन जहाँ पर H का नंबर कम हो. तो देखिए ये वाला CH2 का एक H चला गया, ये Br चला गया. सो डबल बॉन्ड विल अपीयर इन बिटवीन दीज टू कार्बन एटम और ये CH3 एज सच यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. आपसे दोनों ही प्रोडक्ट में आपसे केवल मेजर पूछा है, हम दोनों बना देते हैं. देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस कार्बन पर H का नंबर ज़्यादा है, ये देखो यहाँ CH3 का H चला गया और ये Br चला गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड अपीयर हो जाएगा. सो दिस इज द माइनर, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. क्योंकि सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग उस बीटा कार्बन से H जाएगा जिस पर H का नंबर कम हो या जिस पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो. ठीक है. सो दिस इज वन कंपाउंड. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज 2 chloro 2 methyl butane. This is 2 chloro 2 methyl butane. This is 2 chloro 2 methyl butane when it is treated with alcoholic sodium hydroxide or sodium ethoxide, which will results in the elimination. So this is alpha carbon, this is beta, this is beta, and this is gamma, this is also beta. जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है वो अल्फा, उसका नियर बाई सब बीटा है ये. तो उस बीटा कार्बन से H जाएगा जिस पर H का नंबर कम हो. CH3C, तो ये आपका CH रह गया यहाँ पर इस बीटा कार्बन पे 2 H है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो इससे जाएगा जिस पर H का नंबर कम है. डबल बॉन्ड विल अपीयर हियर, यू विल गेट दिस एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट. और ऐसा भी हो सकता है कि जिस बीटा कार्बन पर 3 H है ये और ये एक ही बात है, इनमें से भी किसी से भी एक आप H आइटम निकाल देंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. एंड टू फुलफिल द वैलेंसी डबल बॉन्ड विल अपीयर हियर. सो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट
and this is the major product. Now we go for the last compound, 2,2,3 trimethyl 3-bromopentane. This is pentane 2,2,3 2,2,3 trimethyl 3-bromopentane. ये कंपाउंड आपके सामने, और इसका ट्रीटमेंट आपको सोडियम मेथॉक्साइड से ही कराना है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। तो इस पे तो बेचारे पे एच ही नहीं है, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। एक तो CH2 से जा सकता है एच, और एक इस CH3 से जा सकता है बीटा से। तो अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH प्लस NOH, एक ही बात। तो देखिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ से जब H चला गया तो इट इज लेफ्ट CH, CH3 SH आ गया, ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3 आ गया। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बीटा कार्बन है ये वाला, यहाँ से भी एच जा सकता है। सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, CH3 CH2 C, double bond will appear here, CH2 C CH3 CH3 CH3। this is the minor product of this reaction। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। if we have compound like this CH3 CH2 CH2 Br, और यहाँ भी ऐसे ले लेता हूँ मैं, एक हेलोजन एटम और ले लेते हैं, दिस इज CHBr। अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे अल्कोहलिक KOH से या अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। तो एक बार क्या होगा, ये वाला Br और ये अल्फा कार्बन का H जाएगा, और सेकंड टाइम में क्या होगा, ये अल्फा इस Br की वजह से, और इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा। तो नेक्स्ट टाइम में ये Br चला जाएगा और ये वाला H भी चला जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, CH3 C CH, और टू फुलफिल द वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड विल अपीयर। ये इथेनॉल और हीट लिखा हुआ है इस पर, देख रहे हैं आप, इथेनॉल और हीट, यानी कि ये अल्कोहलिक KOH है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विल टेक प्लेस। ये जो कंपाउंड आपके सामने ये इस तरह से है, CH3 C CH3, ये दिस इज द थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद alcoholic KOH, ethanol is written, that is it is alcoholic KOH। तो देखिए ये अल्फा कार्बन है जिससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके रेस्पेक्ट में दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन एटम, दिस इज बीटा कार्बन। तो तीनों बराबर ही, तीनों पर H के नंबर से में किसी भी एक से आप H एलिमिनेट कर दो, और किसी एक, और ये हैलोजन तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से एक H चला गया, ये Br चला गया। So we will get alkene as a major product, right? Now we go for the third one। यहाँ पे NaOH और water, that is aqueous NaOH है। So here substitution will take place, CH3 CH, इस Br की जगह क्या आ जाएगा, simply OH आ जाएगा। So you will get butane 2-ol as a major product। Now we see this reaction, KCN Cn negative will substitute this Br, this is nucleophilic substitution reaction है, CH2Cn, and this KBr will form,
In this reaction, CCH5 O negative Na positive plus C2H5 Cl. So this Na positive and this Cl negative will eliminate, and you will get the product C6H5O C2H5. This is ether. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, OC2H5. This is ethoxy बेंजीन. दिस इज इथॉक्सी बेंजीन. और ये आपको पता ही है OH की जगह क्या जाएगा, Cl आ जाएगा. और ये दोनों एग्जांपल्स आपने किए हुए, ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रहेगा ये वाला. एंड इफ इट इज peroxide, it will take place according to anti-Markovnikov's rule, right?